Dear students, welcome to lecture 4 part 1 of computer graphics. In this lecture, we will discuss the lighting problem and its effect on the image. Similarly, we also briefly discuss HSV and HLS color models. These models are the continuation of the previous model that we have discussed already. Recall, those were RGB model and HIS models. The issue of lighting is very problem on the image. It puts pleasant or bad both effects on the image. So the coming models HSV and HLS color models mostly handles the lighting problem in the image. So let's start. So before moving forward, let's recall few important terminologies. Once again, that is visible light, a narrow band of electromagnetic radiations that is between the range of 380 nanometer blue to 780 nanometers रेड. नैनोमीटर्स को हम शॉर्ट फॉर्म में nm लिख सकते हैं. नेक्स्ट वेवलेंथ क्या है? वेवलेंथ ईच फिजिकली डिस्टिंक्ट कलर्स कॉरस्पॉन्ड टू एटलीस्ट वन वेवलेंथ इन दिस बैंड. दैट इज विजिबल लाइट इज सेपरेटेड यूजिंग द डिस्टिंक्ट वेवलेंथ्स. यानी कि जो ऊपर रेंज दी गई है इस रेंज को हम डिस्टिंक्ट वेवलेंथ में सेपरेट करते हैं और डिफरेंट टाइप के दूसरे कलर जनरेट होते हैं. लास्ट में प्योर कलर्स, प्योर और मोनोक्रोमेटिक कलर्स डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर. प्योर कलर जिसको हम टेक्निकली ह्यू भी कहते मीन्स नॉट एग्जिस्ट इन द नेचर. व्हाट इज मोनोक्रोमेटिक? मीन्स सिंगल कलर. It means that pure single color does not exist in the nature. So students, if you see the right side of the slide, various colors are arranged in a vertical form. Each color is shown according to the lightning band it used. इसी में आपको विजिबल बैंड भी नज़र आ रहा होगा जो कि बैंड रेशो के बेस पर डिफरेंट कलर्स में तकसीम होता है, जैसे कि वॉयलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड एक्सेट्रा. तो यही वो कलर हैं जो कंप्यूटर ग्राफिक्स में के लिए रियल लाइफ में इस्तेमाल होते हैं. द अदर इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी इज स्पेक्ट्रम विच इज़ बेस्ड ऑन इंटेंसिटी. सो स्टूडेंट्स, स्पेक्ट्रम इज़ इंटेंसिटी एज ए फंक्शन ऑफ वेव लेंथ. यानी कि एक कलर जो विजिबल बैंड में लाई करता है वो किस इंटेंसिटी के साथ इमेज पर रिप्रेजेंट हो रहा है. सो दिस नोशन इज़ नोन एज स्पेक्ट्रम which is very important while considering colors in images. Finally, the color of an object is the product of the spectrum of the incident light with the light absorption and or reflection properties of the object. Actually, this is the natural process that we perceive colors on our eyelids when energy is reflected from the object. इस बात को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारी आँख से जो है एनर्जी आपके ऑब्जेक्ट पर पड़ती है, वहाँ से जो है लाइट रिफ्लेक्ट होती है और वो आकर हमारी आईलिड पर पड़ती है, जिससे हम उस ऑब्जेक्ट के कलर को समझ सकते हैं और पहचान सकते हैं. There are few problem lies when we are going to process the color images, and obviously we have to deal with them as well. These problems are: the images are vectorial, 3 numbers are associated with each pixel. It means each pixel in color image represents in 3 basic channels: R channel, green channel and blue channel. इसके बारे में स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर्स के अंदर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि RGB मॉडल अगर हम यूज़ करते हैं कलर इमेज प्रोसेसिंग के लिए तो इसके अंदर 3 चैनल्स होते हैं और हर चैनल की 256 इंटेंसिटीज़ होती हैं रेंजिंग फ्रॉम 0 to 255. Second important problem क्या है? The colors recorded by a camera are heavily dependent on the lighting conditions, which is very important and most difficult to deal with it because same object on different lighting conditions changes its characteristics for representation. यानी कि लाइट ऑब्जेक्ट की विजिबिलिटी पर बहुत गहरा असर करती है. इस स्लाइड पर आपको एक एग्जांपल नज़र आ रही है और इसमें 2 इमेजेस हैं. So you can see that lighting condition of the scene have a large effect on the colors recorded. Left image is taken by a flashlight of a camera and the right image is taken by a tungsten lamp light. इस तरह से दोनों इमेजेस के करैक्टरिस्टिक्स डिफरेंट हो गए हैं. अब ये दोनों इमेज देखने में तो सेम हैं लेकिन लाइटनिंग की वजह से इनके पिक्सल्स की जो वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट हैं.
और अगर हम इस इमेज को फर्दर ऑब्जेक्ट डिटेक्शन या आइडेंटिफिकेशन की तरफ जाएंगे तो दोनों इमेजेस के रिजल्ट्स में वाज़ेह फ़र्क आएगा, विच क्लियरली रिफ्लेक्ट्स द इफेक्ट ऑफ द लाइट ऑन द images. Here is another example of lightning effect on the image. The image you are viewing on the slide is same from left to right, top to bottom, but with different lighting conditions. तो अब अगर आप इन इमेजेस को गौर से देखें तो जब लाइटनिंग कंडीशन चेंज होती है तो बैकग्राउंड वॉल पर आप उनकी शेडिंग को देखें तो उसमें भी इफ़ेक्ट आता है, जिससे ये साफ ज़ाहिर है कि करैक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज जो हैं लाइटनिंग कंडीशन की वजह से विगोरसली अफेक्ट होते हैं. सो एज़ पर टू एग्जांपल्स which we have seen in the last two slides, dealing with lighting changes are very difficult. For example, number one, knowing just the RGB values is not enough to know everything about the image. इसका मतलब ये बनता है कि आर जी और बी जो प्राइमरी कलर्स हैं डिफरेंट डिवाइसेस में, क्योंकि हार्डवेयर डिफरेंट होता है तो हार्डवेयर के डिफरेंट होने की वजह से उनको इस्तेमाल करने का जो प्रोसेस है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट हो जा सकता है. यानी कि एक हार्डवेयर पर मौजूद आर कलर किसी दूसरे हार्डवेयर पर मौजूद आर कलर से भी मुख्तलिफ हो सकता है. तो जाहिर सी बात है कि जब हम इमेजेस हैं वो डिफरेंट हार्डवेयर्स पर लेते हैं तो फिर जाहिर सी बात है कि उनके दरमियान में ये फ़र्क लाजमी तौर पे महसूस होगा. फॉर साइंटिफिक वर्क द कैमरा एंड लाइटनिंग शुड बी कैलिब्रेटेड. इट मीन्स देयर शुड बी अ स्टैंडर्ड स्केल that camera absorb light for almost every image, which is not possible and very difficult. And finally, the multimedia applications, which are vigorously using nowadays, are more difficult to organize. For this, we need various type of algorithms which can estimate illumination in the images. Illumination जैसा कि टेक्निकली मैं लास्ट टाइम आपको बता चुका हूँ कि लाइटिंग को कहते हैं. बहुत से एल्गोरिदम जो हैं एग्जिस्ट भी करते हैं और अभी तक रिसर्च जो है हो रही है ताकि इल्यूमिनेशन को जो है जेनरिक वे में तमाम इमेजेस पर शो कराया जाए. हाउएवर दिस कुड बी डन बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. तो इस लाइटनिंग इशू को हैंडल करने के लिए रिसर्चर्स ने बहुत सारी अल्टरनेट कलर स्पेसेस जनरेट की हैं. दीज ऑल कलर स्पेसेस कम्स अंडर द हायरार्की ऑफ RGB रिप्रेजेंटेशन. The purpose is to get better results when we are dealing with images, means color images. This aspect is categorized into three broad categories. Number one is decorrelating the color channels, which can be implemented through principal components. Number two, bringing color information to fore, that is the understanding of hue, saturation and bright. इन तीनों को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. एंड नंबर थ्री, परसेप्चुअल यूनिफॉर्मिटी, यानी कि कलर्स जो हैं वो देखने में एक जैसे लगें. तो इसको दिखाने के लिए डिफरेंट एप्लीकेशन कलर्स मौजूद हैं, CIE, LUV, CIE लैब वगैरह. इस स्लाइड यू आर व्यूइंग डिफरेंट अल्टरनेट कलर स्पेसेस which have been introduced and standardized by CIE and using in contrast to RGB model so as to distribute illumination uniformly among all images for further research. जैसा कि आपको डिस्कस कर चुके हैं कि RGB कलर जो है उस पर लाइटनिंग कंडीशन बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है, बहुत प्रॉब्लम जनरेट करती है और ये लाइटनिंग इफेक्ट जो है रिसर्च के रिज़ल्ट्स पर बहुत असरअंदाज डालता है, जिसकी वजह से फिर ये ज़रूरत पेश आई कि अल्टरनेट कलर स्पेसेस होनी चाहिए जहाँ पर लाइट जो है वो प्राइमरली एक्ट ना करे. इन फैक्ट एवोल्यूशन illumination will not primarily affect the objects of the images for identification and detection. तो इस स्लाइड पर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर पर हमने स्टूडेंट्स ये डिस्कस किया लाइटनिंग प्रॉब्लम्स किस तरह से आपके इमेज को डिस्टर्ब करते हैं. नेक्स्ट स्लाइड पर हम दो कलर मॉडल डिस्कस करेंगे, HSV और HLS, जो इल्यूमिनेशन को हैंडल करने के लिए अच्छे समझे जाते हैं.